Hi nursing family, how are you? I hope you are good, you are well. Today we will discuss about aminoglycosides. It is a group of antibiotics. In that so many antibiotics will come and we will discuss in one trick. You can remember, you can memorize in one trick all the antibiotics. So before that, before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. So अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है? एक एंटीबायोटिक्स के ग्रुप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के लिए ये एक्ट करते हैं. तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो सुगर्स इन ग्लाइकोसाइड लिंकेज. ये अमाइनो ग्लूकोज, अमाइनो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज सुगर्स का एक लिंक है जो कंपोज्ड हुआ है, जो बना है. दे आर derived from the soil actinomycetes of the genus Streptomyces and from the genus Micromonospora. ये फाइलम के एक फाइलम है जिससे जो सॉइल में, जो मिट्टी में पाया गया था उससे ये डेराइव्ड हुआ है, जो है जिसका जीनस स्ट्रेप्टोमाइसियस एंड जीनस माइक्रोस्पोरा. दे हैव बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी. बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देना और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया के फर्दर ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करना. तो बैक्टीरियासाइडल का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस इज द बैक्टीरिया, इट विल किल to aminoglycosides antibiotics entered in our body and it kill the bacteria. The aminoglycoside antibiotics are used for the infections caused by gram negative microorganisms. ये ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. aminoglycosides are usually given IV. It is given usually IV, but in sometimes we can use topical and some we can use intramuscular, but usually it is given IV. You can see one trick, AS Nursing Career. This is my channel name, AS Nursing Career. In that all the antibiotics are hidden. What are the antibiotics? AS means amino glyco, S for sides, and the nursing, when we will pronounce C or S, S will come. So sin means all the antibiotics in end point CIN will come. CIN. And C and K pronunciation K. So for the matching of trick we make C or K. So let's see. A stand for amikacin, S stand for streptomycin, soframycin, then cesomycin. After S, what letter will come? T. T for tobramycin. Now next N. N stand for neomycin. Then G. G for gentamicin. Then K. K for kanamycin. All the antibiotics in one trick in my channel, so you can memorize easily with this trick. Now we will see mechanism of action, how it acts, how it kills the bacteria. Aminoglycosides are bactericidal agents, means it kills the bacteria. How? It penetrates the bacterial cell membrane through pores and bind to 30S ribosomal subunit, leading to the misreading of mRNA. जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और ये मेडिसिन है. फॉर एग्जांपल ये मैंने बैक्टीरिया मान लिया. जस्ट इमेजिन, यू कैन सी हियर, दिस इज द बैक्टीरिया, this is the drugs. When it will go inside our body, it penetrate means the bacterial cell membrane and cell wall. Bacterial cell wall, it is the outer layer, and a cell membrane inside the
cell wall. So it penetrate the cell membrane and through the pores, this is the pore means chhidra, and bind to the 30S ribosomal subunit leading to the misreading of mRNA. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा mRNA, तो उसके साथ क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। बाइंड जब करेगा तो उसका जो सीक्वेंस है, mRNA का जो सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब कर देगा, एबनॉर्मल कर देगा। तो क्या होगा, दिस मिसरीडिंग, जब वो डिस्टर्ब कर दिया mRNA के सीक्वेंस को, दिस मिसरीडिंग रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल पेप्टाइड्स दैट एक्यूमुलेट इंट्रासेलुलरली, एक्यूमुलेट होने लगेगा इंट्रासेलुलरली एंड इवेंचुअली लीड टू सेल डेथ। जब यह एक्यूमुलेट होने लगेगा इनसाइड द, मतलब इंट्रासेलुलर, जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा तो लास्ट में क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। और यू कैन से लाइक दिस, इट इंटरफेयर विथ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये जो बाइंड कर रहा है mRNA प्रोटीन है जो एक बाइंड कर रहा है, उसके साथ वो मिल कर रहा है, जब ये मिलता है तो उसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन लीक होता है। और सेल मेम्ब्रेन लीक होने का मतलब है कि यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए का, वो एक्यूमुलेट होने लगेगा इंट्रासेलुलरली और फाइनली सेल डेथ हो जाएगा। अब इनका यूज, व्हाट इज द यूजेस ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्राइमरीली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरियोबिक बेसिलाई। इट इज primarily used in gram negative bacilli in प्रोटियस। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल प्रोटियस सीडोमोनास इन्फेक्शंस में करते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इंटेरोबैक्टर को किल करने के लिए, क्लेप्सिला को, सीजेला को। ओनली फ्यू इन दीज बैक्टीरियाज और इन्फेक्शंस वी आर यूजिंग एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। Only few gram positive cocci like Staphylococcus aureus, Streptoviridans. In this, only few antibiotics are using. Not effective against gram positive bacilli, gram negative cocci and Aerobes. Only Aerobes में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, Anaerobes में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। We are not using in Anaerobes gram negative cocci and gram positive bacilli. So this is the uses of aminoglycosides. This is the mechanism of action and this is the uses. ग्लाइकोसाइड्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलरी इन्फेक्शन लाइक सेप्टिसेमिया, पेल्विक एंड एब्डोमिनल सेप्सिस, इन सब कंडीशन में हम लोग एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइक बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, इंडो मीन्स इनर, कार्डियक मीन्स हार्ट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इंडोकार्डाइटिस इनर लेयर ऑफ द हार्ट, अगर कोई इन्फ्लामेशन होगा जो बैक्टीरिया के कारण हुआ है, लाइक वो कौन सी बैक्टीरिया है, इंटेरोकोक्कल, स्ट्रेप्टोकोक्कल और स्टेफाइलोकोक्कल इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वाल्व्स। जो वाल्व है जो हार्ट के वाल्व है, अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी हम लोग एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। निमोनियाज में भी करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, इन्फेक्शंस ऑफ कंजक्टिवा और एक्सटर्नल एयर। जो कंजक्टिवा है आई में और एक्सटर्नल एयर जो है कान में, उसमें भी हम लोग उनके इन्फेक्शंस में भी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नेफ्रोटॉक्सिसिटी न्यूरल रीनल फंक्शंस, किडनी के फंक्शंस को भी वो डैमेज करेगा। ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स इट इज द लॉस ऑफ हेयरिंग ऑफ एयर, इसमें भी लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकता है, जो एबिलिटी है आपके सुनने की क्षमता, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन विच कंडीशन वी शुड नॉट यूज द एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। हाइपरसेंसिटिविटी टू द ड्रग ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स से अगर किसी को हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है तो उस स्थिति में हम लोग नहीं करेंगे।
प्रेगनेंसी में भी नहीं करेंगे। सीवियर रीनल डिजीज, अगर किसी को रीनल किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में भी हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए नर्स अगर आप किसी पेशेंट का केयर कर रहे हो और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स उस पेशेंट पे दिया जा रहा है तो हमें क्या क्या ध्यान देना है। तो देखिए, ब्लड लेवल्स, ब्लड का जो नॉर्मल वैल्यूज है उसको देखना है और जो रिजल्ट में आएगा लेबोरेटरी टेस्ट में उसको भी देखना है। रीनल फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड, जो किडनी का जो फंक्शन है, आउटपुट, यूरिन आउटपुट, उसको भी देखना है। अगर वो डिक्रीज होगा तो हमें प्रिस्क्राइबर को, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स शुड नेवर बी मिक्स्ड इन सिरिंज विथ एनी अदर ड्रग, स्पेशली पेनिसिलिन। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ड्रग्स होंगे उसे सिरिंज में ओनली उसी सेपरेट ही रहना होगा, उसमें उस सिरिंज में कोई भी ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, खास करके पेनिसिलिन उसमें मिक्स ना करें। डोंट मिक्स एनी ड्रग्स इन सिरिंज। मॉनिटर फॉर हेयरिंग लॉस, दैट इज कॉल्ड ऑटोटॉक्सिसिटी। जो हेयरिंग लॉस है पेशेंट में, पर्सन में, हम लोग हेयरिंग को मतलब जो है एसिस करेंगे कि इसमें सुनने की क्षमता जो है, कान की जो एबिलिटी है, जो सुनने की क्षमता है वो घट रही है या और कुछ हो रही है, तो उसे हम एसिस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, जो इनटेक होगा, आउटपुट चार्ट होगा, उसे हम लोग मेंटेन करेंगे और पेशेंट से बोलेंगे किसी टाइप्स का भी अगर साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि जो दवाई चल रही है उसे स्टॉप कर दें। ऐसे भी आप देख सकते हैं कोई भी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि अगर दवाई से रिएक्शन हो जाता है तो आप कृपया करें कि आप अपने दवाई को बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें और डॉक्टर के पास तुरंत सलाह लें। थैंक यू।